Hello everyone, my name is Ekta Sagar Sahu. I'm an astronumerologist, Reiki Grandmaster and Vastu expert. And today I'm going to share the information regarding how to maintain the positive vibes in your house. First of all, how to recognize the energies of your house is really important. So when you enter your own house or someone else's house, or if you return back from your offices in the evening, how you feel when you enter your own house. कि आपको स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होता है. समटाइम्स यू आर इन अ वेरी गुड मूड थ्रू आउट द डे. द मोमेंट यू एंटर योर ओन हाउस यू फील प्रेशर्ड, यू फील स्ट्रेस्ड. आपका मूड स्विंग चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है. So if this kind of energies that you feel in your own house, that is called a pushing energy. These are not welcome energies. So we need to check these energies. But if we feel so relaxed, we feel peaceful, we feel happy, light, calm, peaceful, then this is a very welcoming energy. That is called a pulling energy. That is called a positive energies. So it is really important to keep such kind of energies in our own house. If we do not have such kind of energies, obviously we will feel a lot of irritation, mental pressure. So obviously these kind of energies are not good for the relationship in the house. You're always stressful. So how to maintain this positive energy is a constant process. It's not like that you have did once these kind of things, the remedies that I'm going to share with you today, but you have to do it constantly because we keep on changing our thinking, our patterns. We go out, we come back. There's so many people enter in our house. They bring their energies with them. So we need to clear this energy every day. So I will be sharing some Vastu remedies to keep your house very positive, very calm, peaceful, and you can feel the relaxation in your own house. All right. So the first and the most important thing, what is that? जब हमें गुस्सा आता है, sometimes we bang the door, right? दूसरे बंदे को हमें गुस्सा दिखाना होता है कि हमको कितनी तेज गुस्सा आया है. And what we do is something that we push the door or we bang the door और उसको क्या होता है, उससे आवाज निकलती है. तो हमारी जो गुस्से की एनर्जी होती है, जो हमारी एंगर एनर्जी होती है, वो जाके हमारी उसमें जाती है, डोर के अंदर जाती है और डोर से एक नॉइज क्रिएट होती है. और वो जो नॉइज और जो वो गुस्से की वाइब्रेशन होती है, वो पूरे घर के अंदर फैल जाती है. सो दैट इज अ एक्ट ऑफ योर ओन दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव वाइब्स इन योर हाउस. वी शुड अवॉइड दैट. गुस्सा कितना मर्जी भी आया हो, हमें घर के दरवाजों को बैंग नहीं करना चाहिए बिकॉज वही वाइब्रेशन, वो आपकी गुस्से की वाइब्रेशन आपके डोर के थ्रू आपके पूरे घर में फैल जाती है और वो वाइब्रेशन रहती हैं. अब मैं आपको बताऊंगी वाइब्रेशंस को चेंज कैसे करना है. अब वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग यू शुड make your bed. It's really important to clear that energies and make that positive vibe within the bed because you were there in this bed from last 6 to 8 hours. Second thing, please allow the morning light to come inside your house. The natural morning light of sunlight is really important. That should enter your house. Open the windows of your house. All the windows, whatever. You know something? If the opportunities are not approaching you, it means some windows has not been opened. आपको सारी विंडोज अपनी एक एक करके घर की जरूर खोलनी चाहिए. कोई भी ऐसी विंडो घर की नहीं होनी चाहिए जो परमानेंटली बंद हो या परमानेंटली आपने कभी कोई दरवाजा क्लोज हो जिस पे आपने लॉक लगा के रखा हो. नो, एवरी डोर एवरी विंडो शुड बी ओपन वंस और अ सेकेंड डे. ओके, कोई भी परमानेंटली क्लोज मत रखो, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज आनी भी बंद हो जाती है. ऑलराइट, then what we can do if your house is in that direction where the sunlight can enter in your room, especially on the bed, then it is also very very positive vibe, which is something helps you to move the negative energy out of it, burns the negative energy, it allows the positive vibes to get in. All right, start your day with some healing music, some bhajans, some mantras in the morning and evening every day. That should be a part of your daily routine. Every day there should be some timings in the morning as well as in the evening. Okay, we can put such kind of healing music which keep on cleaning your negative energies and imbibes a lot of positive energies. Okay, then
We can bring some small plants, indoor plants in the house. It is really important because हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत. अगर आपको लगता है कि आप बड़े प्लांट मेंटेन नहीं कर सकते हैं और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो यू कैन ब्रिंग अ स्मॉल स्मॉल टॉप अप प्लांट्स लाइक दिस. आप इनको कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो. यू कैन कीप इट लाइक एनीवेयर इन द कॉर्नर्स. आप अपने बेड साइड की साइड में रख सकते हो. सो दीज प्लांट्स हेल्प्स यू अ लॉट टू गिव यू अ वेरी पॉजिटिव वाइब. कॉर्नर में पड़ा हुआ है, ब्यूटिफाई भी कर रहा है आपके घर को और आपके घर को एक पॉजिटिव एनर्जी भी दे रहा है. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके घर के अंदर आप बेल्स लगाते हैं, बेल्स की अपनी ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि बेल का जो म्यूजिक होता है, आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में जब घंटी बजती है, चर्च में बेल होती है, उसकी एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है. आपकी कितना मर्जी ध्यान लगाओ, जैसे ही वो बेल बजता है एक स्मूथिंग इफेक्ट आता है. आपके 7 के 7 जो चक्रास होते हैं, बॉडी के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, वो भी हील हो जाते हैं. उसकी ब्लॉकेजेस क्लियर होती हैं. तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है. आपके घर में अगर आप मंदिर है तो आपके पास कॉपर की घंटी होगी, नहीं है तो विंड चाइम्स होंगी. अगर विंड चाइम्स भी नहीं है तो आप शो के लिए कोई भी बेल लेकर आ सकते हैं और कभी भी इसको रिंग कर सकते हैं. So these kind of things actually helps you to clear that bad energy and bring lot of positive energy. Even the kids can play with this bell and let them play because this negative energy clear very easily with this kind of bell energy. और ये हमारे घर में बहुत इजीली होती है. मॉर्निंग इवनिंग जो लोग आरती करते हैं, जो शंख बजाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव वाइब विच इज क्रिएटेड. और अगर आपको ये नहीं भी करना है तो इजीली आप लोग एक शो के लिए विंड चाइम्स भी ले सकते हो. पुट दैट विंड चाइम्स इन दी वेस्ट इफ इट इज ऑफ सिल्वर कलर. तो ये आपके घर के अंदर कंटिन्यूसली पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती रहेगी. इसके चलते आपके घर में जो भी एनर्जीज अनवांटेड होती हैं ये किल होने लग जाती हैं. द मोस्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इन द बेल इज समथिंग, इसकी जो नॉइज की जो एक आवाज बहुत लंबी चलती है, वो कंटिन्यूसली क्लियर करती रहती है. तो आप वहां भी लगा सकते हैं जहाँ हवा तेज हो, तो उसके कारण आपके घर में हमेशा एक रिंगिंग बेल की आवाज रहेगी. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अ फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स. अगर आप फ्रेश फ्लावर्स नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो आप पेटल्स यूज करिए, flower petals. But I will suggest you to bring the petals which is something has a good fragrance. अगर उसमें खुशबू होगी बहुत ही अच्छी बात है. अगर रेड कलर के फ्लावर लाते हैं तो उनको आप साउथ डायरेक्शन में भी रख सकते हो, इससे आपका फेम भी बढ़ता है. तो यू कैन कीप एंड डू सच काइंड ऑफ वाइब्स वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन कीप ऑन क्लियरिंग योर एनर्जीज एवरी डे. बट ये हमें रोज करना होता है. इट्स नॉट लाइक दिस हमने एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं किया. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दीज एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग. हमारे घर की एनर्जीज रोज चेंज होती हैं क्योंकि हमारे घर में लोग आते हैं, हम बाहर जाते हैं, बाहर से बहुत लोगों से मिलते हैं, अंदर आते हैं, अपने ऑरा में उन एनर्जीज को कैरी करते हैं और वी ब्रिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच वी हैड थ्रू आउट द डे. व्हेन वी एंटर द हाउस, अगर घर लॉक है बहुत टाइम तक, अगर सारे फैमिली मेंबर्स वर्किंग है, स्पेशली उन लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए. The moment you enter your own house, which has been locked for 6 to 7 hours, please make sure you ring the bell. Yes, ring your doorbell before you enter in your own house. अपने खाली घर में ऐसे खुद ब खुद सीधा अंदर नहीं चले जाना चाहिए. You should ring the doorbell. इससे आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. सुबह से लेकर शाम तक जो घर क्लोज रहते हैं, जिनके सारे फैमिली मेंबर्स वर्किंग होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है दैट यू शुड कीप सम इंडोर प्लांट्स. आपके घर में हमेशा कोई लाइवली रहता है. उन प्लांट्स के कारण उनके घर की एनर्जीज हमेशा पॉजिटिव रहती है. इन इवनिंग यू शुड ब्लो सम कैंडल्स विच हैज फ्रेग्रेंस. कैंडल्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगरबत्ती लगा सकते हैं. और व्हाटएवर व्हेनेवर यू डू एनी फायरवर्क, आई विल सजेस्ट यू टू डू इट इन अ साउथ डायरेक्शन. यस, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फायर जो कि साउथ की जगह होती है वहीं पे करते हैं तो आपके करियर को बहुत बूस्ट होता है. हो गया ना. अगर आप देखें तो हमने एनर्जीज भी स्टोर करी, साथ साथ कुछ रेमेडीज ऐसी भी करी जिसके कारण आपको आपकी ग्रोथ में, आपकी स्माइल में, आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट हो सकता है. आपका मूड शिफ्ट हो सकता है. अगर आपको लग रहा है आप घर के अंदर हैं और अभी तो मैंने रेमेडीज शुरू करी हैं, एकदम तुरंत किस चीज से मुझे एकदम उपाय मिल सकता है, आराम मिल सकता है, समथिंग. इफ यू थिंक दैट यू आर फीलिंग लॉट ऑफ डिप्रेशन,
If you think that you are feeling a lot of stress, anxiety, pressure, go and ring the bell of your main door. Yes, वो हम छोटे बचपन में करते थे ना, बच्चे टन 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 डोर बजाते थे बेल की और भाग जाते थे. You have to do it that way. It really helps. आपका एकदम माइंड स्विच हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है. You really feel good. It is very important to get such kind of energies in your own house. It's really important to feel calm in your own house. अगर अपने घर की एनर्जीज वेलकम नहीं होगी, घर आने का मन नहीं करेगा, so this is not healthy. All right. And the most important, which I've mentioned, is something: never ever bang the door. Don't create. If you're not contributing in creating a good energy, don't spread the negativity in your house. It is in your house. And every day you should do all these things. It's not that ek din kara, ek din nahi kara. Every day you should contribute in your own house to maintain this positive vibes. फिर करते करते धीरे धीरे ये एक permanent vibe बन जाएगी आपके घर में, एक environment shift होगा. Every day you will be feeling happy. Every day you will be calm. All right. I hope you like this information, because this is something that I really wanted to share with you, especially to feel happy in your own house.